Listen, you have to help me with this. I think I have a hair stuck in it somewhere. Can you please help me open this? I'm literally ripping your hair. There you go. There's a chunk there. Oh, lost so much hair now. Anyway. Do you think... Sorry for that. There are your boobs coming out. Ali, can you please open this safety pin? Sorry, yes. I mean, how do you describe yourself? How do you describe who you are? I mean... You know what? You've just asked me a very difficult question. I can't describe myself. I really don't know myself. I am a man who likes to... who actually chooses to play a woman in a society which is considered an extremist, intolerant society. But I get nothing but respect and adoration. And I'm talking about even grassroots level people. I'm talking about cab drivers. I'm talking about all kinds of people. I've never received any death threats or any threatening calls or anything of that sort. Why do you think that is? Because I think Pakistanis are not actually as they are perceived by the West. I think Pakistanis are very chilled, happy-go-lucky, wanting to enjoy the moment kind of people. Actually, see, Pakistanis have been so bogged down with so many problems, and then this whole war on terror has really terrorized us, you know. If at all we have been the worst victims, we have been the worst victims. Ali Salim's ambitions extend well beyond his television show, or so he says. I have a feeling that for Ali, everything is a performance. Ali, would you like to get into politics yourself? I would love to. I wanted always to be the Prime Minister of this country because I think that I, and only I, have the power to liberate the people of Pakistan. Why don't you do it? But, you know, my problem is that I'm too simple and straight a person. Well, not so straight. But, are you straight? Well, I am straight in many ways, really. Depends on how you're asking. Well, I'll ask you a simple question. Yes. Are you bisexual? Are you gay? Are you straight? Sweetie, I am trisexual. Trisexual? I try anything that's sexual. Depends on the mood, really. I mean, you know, why discriminate? You know, it's all about having a good time, you know. Why deprive one's own self of good pleasures? You know, I think one should be adventurous. I'm a very adventurous person. I'm a very curious person. As long as you're doing whatever you're doing behind closed doors, or it's about you and me, nobody has a problem. It's when you go out and you start announcing to the world, that is when the society will take you as a threat, and they will say, why is he making such a hullad, you know, such a noise about it, and let's shut him up. Hi, how lovely. Surely, if everything's kept behind locked doors, how are you going to make change? Because there's nobody brave enough to come out and say, this is who we are. We want equality. You know, there are perhaps loads of women out there. Look at me, darling. I came out. And you discredited me just like that. You said nobody's brave enough. I'm hurt and I'm upset. You know, bit of makeup Nawaz coming back. You know, the makeup going, Begum Nawaz should be going as well, but she keeps coming back all the time. Both Ali and his screen creation seem so at odds with what I thought I'd find here. I'm clearly going to have to change some of my preconceptions about this place. Okay, listen guys, یہ ہے کراچی کی ایک سیٹرڈے نائٹ اور بیسیکلی جب آپ 20 سال کے ہوں اور آپ پارٹی کرنا چاہیں تو آپ اس جگہ پر آتے ہیں. ہم سمندر کے کنارے پر ہیں اور تاپمان 85 ڈگریز ہے اور آپ شہر میں پارٹی نہیں کر سکتے, آپ شراب نہیں پی سکتے یا مستی نہیں کر سکتے, تو آپ یہاں آ سکتے ہیں ٹھیک یہاں پر. ہینکی اسپینکی کے بعد شراب خوب بہتی ہے. صاف طور پر ہم پاکستان کی صدیوں پرانی پرمپرا سے میلوں دور ہیں. مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہاں پاکستان میں شراب پینا منع ہے.
हाँ, वेल अनफॉर्चुनेटली बाहर खुले में लोगों के सामने आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे, पर जो आप अपने घरों के अंदर करते हैं वो लोग नहीं जानते, यू नो। और इसके ठीक उलट जब आप बाहर जाते हैं तो आप पूरी तरह बदल जाते हैं, और यही वजह है कि जिससे ये ख्याल कि मैं तुमसे ज्यादा मजहब को मानता हूँ का जन्म हुआ। हर कोई दूसरे के सामने ये प्रूव करना चाहता है कि वो अपने मजहब पर ज्यादा अच्छी तरह से चलता है। वेल कुल मिलाकर अगर कहूँ तो पाकिस्तान रॉक। पाकिस्तान रॉक। ये तो कमाल की बात है। मैं आपको और दूसरी लड़कियों को देख के हैरान हूँ कि बिना बुरके के आप यहाँ डांस कर रही हैं। कैसा लग रहा है? यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक गलत फहमी है कि यहाँ तालिबान है और यहाँ सभी महिलाओं को पर्दे में रहना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं। पर मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पाकिस्तान आकर मुझे ये सब देखने को ये मिलेगा। कल्चरल शौक है। क्या ये मेरे लिए कल्चरल शौक है? हाँ है तो। बाय द वे, इस पार्टी में मेरा नया दोस्त है अली, और ये सारी ट्रिक्स जानता है। अली, तुम्हारी तो मौज है, जरा सीक्रेट बताओ ना, तुम काम क्या करते हो? वेल आई वर्क फॉर टेलीविजन। मैं अगर कहूँ कि मेरी तरह? हाँ, तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या मैं आकर तुम्हारा कोई शो देख सकता हूँ? पूछने की जरूरत नहीं है डार्लिंग, यूर पाकिस्तान। ओके, मैं आ सकता हूँ। जस्ट डू इट जब भी तुम वहाँ आना चाहो। अगले ही दिन मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ अली भी था, लेकिन आज उसका रूप ही बदला हुआ था। वेलकम टू द बेगम अली शो। जैसा कि आप सोच रहे होंगे, ये कोई कॉमेडी प्रोग्राम नहीं है। ये पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा पॉलिटिकल शो है। यहाँ मेहमान सीरियस हैं और सवाल उनसे भी ज्यादा। अली के इस शो को 3 करोड़ दर्शक देखते हैं। इतनी टीआरपी सुनी है कभी? मेरी पहली मेहमान वाकई एक कामयाब लेडी हैं। मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तानी सियासत है, तमाम रंग, तमाम रौनक, तमाम जज्बा। बट मैं तुमसे जानना चाहूंगी कि हाउ आर थिंग्स डिफरेंट विद इन द पार्लियामेंट हाउस। आज से 20 साल पहले में और आज में कितना फर्क आया है? आप तो वाकई कमाल हैं मैडम, आपने तो मुझे हैरान कर दिया। और ये है डिएगो। हेलो सर। ये तो कमाल की बात है कि पाकिस्तानी टीवी पर एक मर्द औरतों के कपड़े पहने आप दोनों का इंटरव्यू ले रहा है। हाँ, ये तो कमाल है। दरअसल हमारी सोसाइटी बहुत अंडरस्टैंडिंग है और तमाम लोगों की नजरों में पाकिस्तान की वही पुरानी दकियानूसी तस्वीरें हैं। जी जी, आई मीन जब आप पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो आप मुल्लास के बारे में सोचते हैं, तालिबान के बारे में सोचते हैं, आप ऐसी चीजों के बारे में तो सोचते नहीं। आई मीन एक मर्द औरत के कपड़े पहने नेशनल टीवी पे एक शो प्रेजेंट कर रहा है, और ये एक बहुत ही पॉपुलर शो भी है। काफी समय से अली इस कोशिश में लगे हैं कि एक दिन वो फ्रांस की नई ग्लैमरस फर्स्ट लेडी का इंटरव्यू लें। इन वर्षों में अली पाकिस्तान की सभी मशहूर हस्तियों से मुखातिब हो चुके हैं। बिजनेस लीडर से लेकर फिल्म स्टार्स तक अली ने सभी का इंटरव्यू लिया है। क्या कभी तुम्हें अपनी जान को खतरा महसूस नहीं हुआ? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं लगा कि मुल्ला तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे? कभी डर नहीं लगा? डिएगो, व्हेन आई लव योर नेम बाय द वे। जब मैंने अपना शो शुरू किया तो बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया, पुराने दोस्त जिन्होंने फोन करके कहा आर यू क्रेजी अली। ऑफ कोर्स उन्हें मेरा पुराना नाम याद था, तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा अली आर यू क्रेजी, तुम भूल गए हो जिस मुल्क में तुम रहते हो उसका नाम है पाकिस्तान। ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ऑफ कोर्स वो लोग मेरी सिक्योरिटी को लेकर फिक्रमंद थे। तो तुम किसके अधिकारों की रक्षा कर रहे हो? औरतों के, गेज के या मर्दों के? किसके? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये सारे प्यारे शब्द जो आप लोगों ने वेस्ट में इन्वेंट किए हैं, जैसे कि होमोसेक्सुअल्स या गेज या स्ट्रेट्स या फिर ये या वो, ये सब चीजें हमारे मुल्क, हमारी सोसाइटी में नहीं चलती। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि किसी को भी गे राइट्स या लेस्बियन राइट्स की फिक्र नहीं है यहाँ पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि हर साल यहाँ हजारों हजार लोग मारे जाते हैं टेररिस्ट अटैक्स में और सुसाइड बॉम्बिंग्स में, थिंग्स लाइक दैट। यहाँ प्राइस हाइक है, यहाँ कमी है एजुकेशन की, तो हमारे इश्यूज बहुत बहुत बड़े हैं। तो हमारे पास ये लग्जरी ही नहीं है कि हम इन छोटी छोटी बातों के बारे में सोचें। अली, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आई विश यू गुड थैंक यू सो मच। चलो चलकर एक ड्रिंक लेते हैं।
اوکے کٹ کٹ کٹ, ہم ڈنر لینے والے ہیں ساتھ میں. ڈنر کے لیے جانا ہے, اب کیمرے بند بھی کر دو نا.